Then, my lord, there is a dialogue which says, "Tanu chahiye vote, sanu chahiye Khalistan." We haven't seen the film, we haven't seen the trailer. We don't know because sometimes the trailer does not portray the actual position. Which are so gruesome, which give the impression that Sikhs are the most, I will say, firstly secessionists, and secondly they are so cruel. We have got small children going to the school wearing patka and judda, my lord. Their small children and others will tease them as Khalistanis. How the Supreme Court comes down so heavily on such type of act. Mr. Rupra, Producer, for that, my lord, will have to issue notice. you should have at least sent them a digital copy. They would have been here. कंगना रनावत के फिल्म इमरजेंसी ने क्या वाकई में सिखों को लेकर छवि इतनी नेगेटिव बना दी है कि अब तो उनके बच्चों को खालिस्तानी कहकर बुलाया जाने लगा है। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में इमरजेंसी फिल्म को लेकर बहस हो रही थी और इस दौरान एक वकील ने यह कह दिया कि सिखों के बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, वहां पर उन्हें खालिस्तानी कहकर चिढ़ाया जाता है। कंगना रनावत के फिल्म इमरजेंसी को लेकर माहौल जितना बाहर गर्म है, उतनी ही तल्खी कोर्ट के अंदर भी देखी जा रही है। इस फिल्म पर हालांकि रोक लगाने की बात कही जा रही है। टीजर जब से रिलीज हुआ है तब से बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि फिल्म में दिखाया गया दमदमी टकसाल के प्रमुख भिंडरावाले का एक कैरेक्टर और दूसरा सिखों को जो छवि इसमें दिखाई गई है उसे लेकर बवाल इस कदर मचा हुआ है कि फिल्म पर रोक लगाने की मांग तक की जा रही है। तो वहीं कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उसे भी जानना बेहद ही जरूरी है कि जज साहब की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सिख संगठनों ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर आरोप लगाया है कि सिखों की छवि गलत दिखाई गई है। इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर सिख संगत और गुरु सिंह सभा इंदौर ने एक याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं की ओर से सिख वकील ने दलीलें पेश की और इस दौरान वो काफी भावुक हो गए, जिसके बाद फिल्म के रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। वकील की दलील थी कि ट्रेलर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट नरेंद्र पाल रूपरा ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर बहुत ही पॉपुलर हो गया है और ये रोंगटे खड़े करने वाला है। ट्रेलर में सिखों की बहुत ही निर्दयी छवि दिखाई गई है। एडवोकेट रूपरा ने कोर्ट में ये भी कहा कि सिखों के बच्चे स्कूल जाते हैं, वो पटका पहनते हैं और उनको खालिस्तानी कहकर चिढ़ाया जाता है। The trailer of Emergency shows, my lord, that your lordship knows Amritdhari Sikhs. Amritdhari Sikhs, my lord, they are very easily recognizable. They wear kirpans, Yes, sir. and then gatra is there, long beard is there. They are wielding guns, my lord, and they are killing people, bringing them down from a bus. And all of them, none of those, my lord, who are the victims, they are not bearing burden. Of course, they belong to other community. Then, my lord, there is a dialogue which says, "Tanu chahiye vote, sanu chahiye Khalistan." My lord, we have got small children going to the school wearing patka and judda, my lord. Their small children and others will tease them as Khalistanis. My lord, the pride of every Sikh is to join the Indian army. Your lordship knows it very well. And my lord, Shri Guru Granth Sahib has got 1430 pages. 2500 times, my lord, the word Ram has been used in Shri Guru Granth Sahib. And it is mentioned, Sabhe Ghat Ram Bole, Rama Bole. All the Hindu deities have been glorified and praised in Shri Guru Granth Sahib Ji. How the Supreme Court comes down so heavily on such type of act. Mr. Rupra, we haven't seen the film, we haven't seen the trailer. We don't know because sometimes the trailer does not portray the actual position. Yes, but the trailer is so popular, my lord, and so catchy trailer. I can show the relevant portion here itself to my lord. And I have given 2 photographs of the trailer, which are so gruesome, which give the impression that Sikhs are the most, I will say, firstly secessionists, and secondly they are so cruel. सूरा सो पहचानी जो लड़े दीन है, not my lord. जज साहब ने सिखों को लेकर कही दिल को छू जाने वाली बात। तो वहीं जस्टिस संजीव सचदेवा ने उनसे कहा कि हमने कोरोना काल में सिखों का योगदान देखा है। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे लॉकडाउन में भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय लोगों की मदद के लिए सबसे आगे थे। जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि सिख लोगों को खाना और शेल्टर मुहैया करवाने में सबसे आगे रहे हैं और दिल्ली में जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तो सभी गुरुद्वारों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, जहाँ से दूर दूर के इलाकों में लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई।
during the first and the second lockdown, but you must have been, I was not here, I don't know what happened in Madhya Pradesh, but Delhi and world over, the Sikh community was in the forefront of helping these people. They were in the forefront of providing food, shelter to all these people, and even in Delhi there was an issue of oxygen. All gurdwaras had oxygen supplied, they could manage it from faraway places and they were in the forefront. अब फिल्म के ट्रेलर को लेकर जो बवाल मचा हुआ है और सिखों ने जिस तरीके से इस पर बवाल मचाया हुआ है, क्या है पूरी सच्चाई? फिल्म में जो टीजर में दिखाया गया है, क्या वाकई में वही पूरा हिस्सा फिल्म के अंदर भी है? हालांकि आपको बता दें कि सेंसर बोर्ड के द्वारा इसमें कट्स लगाने की बात भी कही गई है और ये भी खबर सामने आ रही है कि कई सारे कट्स लगने के बाद और सेंसर होने के बाद ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी, लेकिन कब तक आएगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।